So, a very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss about how to access a list. Here, we will access elements of a list individually. So, accessing an element means we are going to retrieve the value of a particular index from the list. Okay, accessing a list means reading all the elements of the list. मतलब we are going to read all the elements of the list one by one, yeah, one after the other, by using the subscript or index number. So how we can read the data from the list? We can read the data, we can access the data, we can access the element, we can access the values with the help of subscript or index number. Okay, so if we want to read the data, if we want to modify the data in the list, we will use index number. Okay, for example, we are having this list L is equal to 12, 45, 66, 77, 88, 55, 44, 22, and then 70, 66, 77, and 88. So in this list, we are having 11 elements. Okay, we are having 11 elements here. So when we declare a list, okay, it the interpreter automatically assign a index number to a particular to the list. जो हमारी लिस्ट है उसको क्या करेगा, उसको हमारा इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देगा. हर आइटम को इंडेक्स नंबर एक मिल जाएगा और वो इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो सकता है, वो इंडेक्स नंबर हमारा पॉजिटिव इंडेक्स नंबर भी हो सकता है एंड वो इंडेक्स नंबर हमारा नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी हो सकता है. दैट इंडेक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. ठीक है, इंडेक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, that will start from 0. Okay, the positive number start from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the negative index number will start from -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, and -11. So this is how we can assign, we can find the index number a of an element in the list. So here in this list, this 88 has an index number, positive index number 4, and negative index number is -7. Okay, so here 22, this has positive index number 7 and negative index number -4, and in this we are having 77, it has positive index number 9 and negative index number -2. So with the help of index number की मदद से हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ओके, ईच एलिमेंट इन ए लिस्ट हैज एन इंडेक्स वैल्यू. जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, अभी ईच एलिमेंट इन ए लिस्ट हैज एन इंडेक्स वैल्यू. इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी एंड मस्ट बी एन इंटीजर. इट शुड बी एन इंटीजर. ठीक है, हमेशा इंटीजर ही रहेगा. Individual elements can be accessed. Individual elements can be accessed by typing index value inside square bracket as shown below. अब अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को रीड करना है, if you want to read the individual element of the list, then we will write the index number of the list into the square bracket. Okay, ठीक है. First of all, we'll write the name of the list. ठीक है, then in square bracket we will write the index number. For example, look at the example carefully. Here we are having this list. ठीक है, list L, and this 12 is 0 position, 45 is 1 position. You can see this 45 is 1 position, 66 then 66 2 position, 77 third position पे है, 88 4 position पे है, and so on. So if we want to print 55 here, अगर हमें ये 55 print करना है, if you want to print this 55, then we will use the index number of 55. Okay,
So the index number of 55 in the list is, in this list, the index number of 55 is, we'll find the index number 0, 1, 2, 3, 4 and 5. The index number of 55 in our list is 5. So what we'll do, we'll write print, if you want to print the element, print L, print parenthesis are must, then name of the list, and in square bracket we will write the index number. So we will write the index number and then we will get the output like this, 55. Okay, fine. So print पैरेंथेसिस एल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे 5 लिया है. 5 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 55. सो हेयर वी विल गेट 55 एज एन आउटपुट. ओके, second example, print L 9. Here we have written 9. Okay, 9 index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is on 9. ठीक है, 9 इंडेक्स नंबर. ओके, तो 9 इंडेक्स नंबर विल गेट 77 एज एन आउटपुट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर 77 का क्या है, 9. ये 9 पे क्या है, 77 है. अगर हम यहाँ पे इसकी जगह -2 भी रखेंगे, इफ विल राइट -2 हेयर, देन आल्सो वी विल गेट 77 सॉरी. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, चलिए इसको हम करके देखते हैं पाइथन के अंदर. Suppose this is our list. L is equal to, कॉपी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको. We'll copy this list. It will save our time. We'll copy this list. हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है. And if we'll write print L, L is the name of the list, capital L. Then in square bracket we will write the index number. Suppose we'll write 5. So here we'll get the output 55. You can see the output is 55. Okay, if we'll write 9, then we'll get 77. In place of 9, if we'll write -2, then also we'll get 77. Okay, क्लियर कर देते हैं इसको. Now if I write -5, so -5, -1, -2, -3, -4 and -5. So here we will get the output -5, that is 44. So we will get the 44. So this is how we can access the individual element of a list. अगर हमें individual element को access करना है, तो with the help of index number or subscript number we can access the individual element of a list. So अगर हमें दो element का sum करना है, if you want to add two elements, so हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस L और हमने दूसरा element ले लिया सपोज 3, राइट, L3. तो -4 क्या है, -5 तो ये है हमारा 44 और L3 पे क्या है 0, 1, 2, 3. तो 44 plus 77, 44 plus 77 will get 121. Okay, so this is how we can perform operation on individual element of the list. Okay, suppose if you want to change the item, suppose you want to change the list. Okay, so we can write, if I write L और 4 पोजीशन पे, L की 4 पोजीशन पे क्या हो जाए, 445 हो जाए. L की 4 पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 88 की जगह क्या हो जाए 45 हो जाए. तो हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर, वी कैन राइट द इंडेक्स नंबर L, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा और उसके आगे 45 लिख दिया. देन वी कैन प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट L, लिस्ट को प्रिंट करेंगे एंड देन वील गेट द लिस्ट. ठीक है, और आप देख सकते हो इस जो आउटपुट हमारा आया है इसमें 88 की जगह जो 88 था हमारा 4th पोजीशन पे 0, 0, 1,
2 3 और जो फोर्थ पोजीशन में हमारा पहले 88 था, अब वो फोर्थ पोजीशन में हमारा क्या आ गया 45 यहाँ पे आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई अ लिस्ट, ठीक है ना। वी कैन मॉडिफाई अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द लिस्ट। हमें आइटम अगर चेंज करना है तो दैट्स व्हाई लिस्ट इज नोन एज म्यूटेबल डाटा टाइप। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट, ठीक है। ट्रैवर्सिंग इज ए लिस्ट। ट्रैवर्सिंग और एक्सेसिंग में क्या अंतर है बेटा? ट्रैवर्सिंग एंड एक्सेसिंग, एक्सेसिंग वी आर गोइंग टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट। कोई भी हमें इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है, 2 एलिमेंट एक्सेस करने हैं, 3 एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो वी कॉल इट एक्सेस, ठीक है, कि हम एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। और ट्रैवर्सिंग मीन्स वी आर गोइंग टू रीड या वी आर गोइंग टू प्रोसेस या वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एंटायर लिस्ट। पूरी की पूरी लिस्ट पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पूरी लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं, हर आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं या हर आइटम को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग लिस्ट। ट्रैवर्सिंग मतलब शुरू से लेके आखिरी एलिमेंट जो भी है उसको हम रीड करने वाले हैं, उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं। सो ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग, उसको रीड करना, ठीक है ना, एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, उसको एक्सेस करना, आइटम्स को एक्सेस करना और उनको प्रोसेस करना। टू ट्रैवर्स ए लिस्ट वी यूज पाइथन लूप्स, ठीक है ना, हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है, हम लूप लिख देते हैं यहाँ पे। सो टू ट्रैवर्स ए लिस्ट, लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, क्योंकि लिस्ट हमारी कितने भी एलिमेंट की हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे बहुत सारे एलिमेंट हैं और हम इसको इंडिविजुअली तो लिखेंगे नहीं, तो हमें दिक्कत होगी उसको लिखने में। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रैवर्सिंग के लिए हमेशा लूप का यूज करते हैं, जिससे हम उसको आराम से हर आइटम को उसके एक्सेस कर सकें। तो अब कैसे करेंगे उसको, उसका भी देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखा फॉर आइटम इन लिस्ट, ठीक है। आइटम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आइटम वेरिएबल हो गया, ठीक है। वी कैन राइट वेरिएबल नेम हियर इन लिस्ट, और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को मेंशन कर देंगे, जो भी हमारी लिस्ट है हम उसको मेंशन कर देंगे। तो क्या होगा, लिस्ट के जितने भी आइटम होंगे, जिसके लिस्ट के जितने भी आइटम होंगे वो एक एक करके इस आइटम में आएंगे और हम उसको वहाँ पे प्रोसेस करते रहेंगे, हम उसको वहाँ पे रीड करते रहेंगे या हम उसको वहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है खाली हमें सिर्फ सारे एलिमेंट को रीड करना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग इसको वैसे करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ सीधे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और अगर हमें आइटम्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो वो विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट, ओके। सो अभी हम सिंपल सा ही लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करना सीखेंगे कि कैसे ट्रैवर्स करते हैं, पहले हम उसको ध्यान देते हैं। तो फॉर आइटम इन लिस्ट कॉलन है एंड देन प्रोसेस ईच आइटम है, और यहाँ पे हम उसके कोडिंग के अंदर, उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हम उस आइटम के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो देन एग्जाम्पल है इसका ये। तो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट PYTHON पाइथन, ये हमने लिखा है, ठीक है। इसके अंदर हमने 6 अल्फाबेट डाले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पहले ये जो हमारी लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी, PYTHON पूरा आ जाएगा। और सबसे पहले क्या होगा, P द वैल्यू ऑफ A विल बी P, ठीक है ना। जो A की जो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू क्या होगी, P होगी। और यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट A, तो ये प्रिंट P प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू जो होगी A की वो Y होगी, फिर हम Y प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद T, फिर H, फिर O and N। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। हम हर एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव करते हैं पाइथन में, इसको करके देखते हैं। तो अगर हमें पूरे एलिमेंट्स को रीड करना है, एक तो तरीका हमारे पास ये है, प्रिंट प्रिंट हमने सीधे लिख दिया L, तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ओके। पर इस जो ये प्रिंट हो गई, ये पूरी प्रिंट तो हो गई, पर हमने इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। अब सपोज क्या है, अब हमें पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है। फॉर ए, ये लूप है हमारा, फॉर ए इन L, ठीक है। L हमारी लिस्ट है यहाँ पे, प्रिंट A,
ओके, प्रिंट ए कर दिया। जैसे हम इसको रन करेंगे विल गेट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। यू कैन सी 12, 45, ये हमारे पूरे पूरे 12, 45, 66, 77, 88, 55, 44, 22। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। अगर हमें एलिमेंट सारे लिस्ट के प्रिंट करने हो तो हम इस तरह से लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अगर हमें कुछ इनमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वी कैन राइट +1। सपोज हमने +1 करना है सब आइटम के अंदर, तो वी कैन राइट +1। तो हेयर विल गेट 13, 46, 67। तो कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन। अगर आपको इसमें से खाली ओड नंबर्स प्रिंट करने हैं, इफ यू वांट टू प्रिंट ओड नंबर्स इन दिस, तो हेयर विल राइट इफ a mod 2 = 0। ठीक है, अगर हमें खाली ओड नंबर प्रिंट करने हैं लिस्ट के अंदर, देन विल राइट इफ mod 2 = 0, देन ये तो ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर देते हैं तो 1, इसको 1 कर देते हैं। 1 ओड नंबर के लिए प्रिंट ए। ओके, बस इतना ही करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं, राइट, तो हियर विल गेट ओनली द ओड नंबर्स इनसाइड द लिस्ट। जो भी हमारे लिस्ट के अंदर ओड नंबर्स हैं, केवल वही हमारे ओड नंबर प्रिंट होंगे। अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो विल राइट हियर 0, हम 0 कर देंगे इसको। देन वी विल गेट द इवन नंबर्स ऑफ द लिस्ट। जो भी लिस्ट के अंदर हमारे इवन नंबर्स हैं, हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेवर्स द लिस्ट। पूरी की पूरी हमने लिस्ट ट्रेवर्स करी, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को हमने चेक किया। इंडिविजुअल एलिमेंट को चेक करने के बाद, ठीक है, हमने इंडिविजुअल एलिमेंट चेक किया। इंडिविजुअल एलिमेंट को चेक करने के बाद हमने केवल उसमें से उन्हीं नंबर को प्रिंट किया जो हमारे क्या थे, जो हमारे इवन नंबर से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर इन द लिस्ट। ओके, सो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर इन द लिस्ट। तो हमने इवन नंबर सारे प्रिंट कर लिए जो हमारे इवन नंबर से। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर प्रोग्राम्स। सेव कर देते हैं इसको। इवन नंबर्स लिस्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कंपेयरिंग द लिस्ट। ठीक है ना, लिस्ट को कंपेयर कैसे करेंगे। दो लिस्ट हमारे पास हैं, उनको हमें कैसे कंपेयर करना है, उसको आज हम सीखेंगे कि लिस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वी कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ पाइथन। स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनको यूज करके हम क्या करेंगे, दो लिस्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट और टपल इन लेक्सिकल ऑर्डर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, दिस मीन्स दैट टू कंपेयर इक्वल each corresponding element must be compared equal। ठीक है, एंड टू सीक्वेंस मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होती है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में क्या होगा, जैसे हमारी ये दो लिस्ट है, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, हमने इसके अंदर डाला 1 2 3 और दूसरी लिस्ट के अंदर भी हमने डाला 1 2 3। ये हमने दो लिस्ट बनाई है। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में क्या होता है, पहले क्या होगा, पहली लिस्ट का यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे, लिस्ट 1 = लिस्ट 2, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पहली लिस्ट का पहला आइटम, ठीक है, कंपेयर होगा दूसरी लिस्ट के पहले आइटम से। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या होगा, दूसरा आइटम फिर दूसरे आइटम से, दोनों इक्वल हैं, फाइन। फिर तीसरा आइटम तीसरे आइटम से, दोनों इक्वल हैं, फाइन। ठीक है, इन दैट केस इट विल गिव यू ट्रू। ठीक है, उस केस में आपको ट्रू देगा। बट अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 3,
तो 1 2 3 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 3 3 से, तो इन दैट केस इट विल गिव अस द फॉल्स आउटपुट। यहाँ पे ये हमें फॉल्स आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं पाइथन के अंदर। ये हमारी दो लिस्ट है, लिस्ट 1 कोमा लिस्ट 2। ओके, विल प्रिंट L1 इक्वल्स टू L2, राइट। रन किया इसको, हेयर विल गेट फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये क्या है 1 2 3 है और ये क्या है यहाँ पे 1 3 3। इसको चेंज कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। नाउ विल गेट द आउटपुट एज ट्रू। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? आउटपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे लेस देन सिंबल लगाते हैं, इफ विल पुट लेस देन सिंबल, लेस देन, रन करते हैं इसको, देन विल गेट फॉल्स आउटपुट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, लेस नहीं है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा, यानी कि ये लिस्ट हमारी बड़ी हो जाएगी, तो इन दैट केस विल गेट द आउटपुट ट्रू। अब हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि ये लिस्ट हमारी क्या हो गई? ये लिस्ट हमारी बड़ी हो गई है, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू पहली लिस्ट की, दूसरी पहली वैल्यू पहली लिस्ट की, ठीक है, वो दूसरी लिस्ट की पहली वैल्यू से छोटी है। ठीक है, पहली लिस्ट में L1 में क्या है? पहली वैल्यू 1 है, और L2 में क्या है? पहली वैल्यू 2 है। तो L1 की पहली वैल्यू L2 की पहली वैल्यू से छोटी है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आउटपुट ट्रू आया है। नाउ आई विल राइट ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन लगाएंगे, तो ग्रेटर देन के समय इट विल गिव यू फॉल्स बिकॉज L1 इज नॉट ग्रेटर देन L2। ठीक है, L1 इज नॉट ग्रेटर देन L2। ओके, और एग्जांपल देखते हैं इसके कंपैरिजन के। सो हियर वी आर हैविंग थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट इज और नेस्टेड लिस्ट, यू कैन सी इट इज और नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, वन पहला एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ये है, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे L1 इक्वल टू L3, तो इन दैट केस इट विल गिव यू फॉल्स। यहाँ पे आपको फॉल्स देगा। फॉल्स क्यों देगा? क्योंकि दोनों लिस्ट इक्वल नहीं है। पहली लिस्ट में क्या है 1 2 3, और दूसरी लिस्ट के अंदर क्या है 1 1 और 2 एंड 3, दोनों वो दूसरी लिस्ट है, वो नेस्टेड लिस्ट है। तो इन दैट केस इट विल गिव यू फॉल्स आउटपुट। ओके, देन L1 इज लेस देन L2, इन दैट केस अगर हम इसको ऐसे रखते हैं L1 is less than L2, then it is false. Okay, and then अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 8 9 एंड इट विल चेक 9 1, तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो ये लिस्ट बड़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट विल चेक द फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, 1 9, इनमें से कौन सा बड़ा है? इसके अंदर 9 बड़ा है, तो ये क्या है हमारी कंडीशन? हम लगा लेस देन सिंबल, तो दैट कंडीशन इज ट्रू, इन दैट केस कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा 1 2 8 9, पहली लिस्ट है 1 2 8 9 और दूसरी लिस्ट है हमारी 1 2 9 1। तो यहाँ पे 1 2 तो सेम हो गए, इधर 1 2 और ये इधर 1 2 सेम हो गए, बट यहाँ पे जो 8 है इसकी जगह क्या है? यहाँ पे 9 है। तो ये इनको कंपैरिजन करेगा और इनमें से जो भी बड़ा होगा वो लिस्ट हमारी बड़ी होगी। ओके, सो इन दैट केस इट इज ट्रू। ओके, देन वी आर हैविंग 1 2 8 9, 1 2 8 9। ठीक है, हियर वी आर हैविंग 1 2 8 4। तो क्या है 1 2 8 तक तो तीनों बराबर हैं, ये दोनों लिस्ट भी बराबर है, ये दोनों ये भी लिस्ट बराबर है, ये भी बराबर है। बट ये 9 यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 4 और हमने क्या लगाया? लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, so in that case this will be false, here it will give you the false output. I think it is clear to you. So अगर हम इसको यहाँ पे ये कर देंगे, ग्रेटर देन लगा देंगे, then it will become true, true. Okay, तो ये true हो जाएगा। Fine. So that's all for this video. In our next video we will discuss list operation, joining the list, replicating the list and slicing the list. joining list मतलब दो लिस्टों को आपस में जोड़ना, replicating मतलब एक लिस्ट को रेप्लिकेट करना, और स्लाइसिंग लिस्ट के अंदर से कुछ पर्टिकुलर डाटा
एक्सट्रैक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ज्वाइनिंग लिस्ट, replicating list and slashing list. So that's all for the day. Thank you very much. God bless you all.